So neural networks demonstrating this amazing capability कि आपके पास जैसे जैसे डेटा की मिकदार बढ़ती जा रही है, और आजकल हम जैसे कहते हैं we are living in the era of big data, they demonstrate an amazing capability of demonstrating better and better results, more and more improvement in the model. That's why neural networks, जिनको आजकल हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं या डीप लर्निंग भी कह देते हैं, they have been so much favored and they have demonstrating amazing capability of solving very complex problems. I remember when I first taught artificial intelligence, it was 2007. I remember a session of 2008. I was teaching it for the second time. So teaching AI for the first time was a nightmare. आप इमेजिन करें आपको एक कोर्स पढ़ाने को दे दिया जाए, आप नए नए ग्रेजुएट में, और आपसे कहा जाए आओ बेटा तुम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ा दो. So there are some subjects which are very tangible and there are some subjects which are very abstract. और मजे की बात यह है कि जब तक ML पॉपुलर नहीं थी और हम AI पढ़ाया करते थे, AI की इतनी एप्लीकेशंस ना समझ आती थी, ना इतनी पॉसिबल होती नजर आती थी हमें. तो AI एक एब्स्ट्रैक्ट मजमून साबित होता था हमारे लिए. So teaching AI, I first taught it in 2007, fall of 2007. I second taught it in spring of 2008. So this was much better than this. यहाँ पे मैं किताब पढ़ के it was the era of abstract AI, जिसकी applications बहुत ज़्यादा नहीं थी. So, रात को 2 बज जाते थे तो उसके बाद मेरा दिल करता था 2, 3, 4, 5 घंटे मैंने मुसलसल पढ़ लिया है, और सुबह क्लास लेनी है मुझे AI की जाके, तो रात को फिर मैं सोच रहा होता था कि अब सुबह क्या ऐसा बहाना बने कि मुझे क्लास ना लेनी पड़े, तो वो बहाना मेरे पास नहीं होता था. So it was a nightmare. But when I was teaching it second time, I was better because compared to that, when we talk about teaching ML is much more tangible and rather concrete concepts. We seem to know what are the applications and where are they being used. They are practically available. So we are talking about much more tangible domain. That makes it worth it. That makes it easy to learn this thing as well, and we feel more motivated to learn it as well because we know this is practically working in the market now. Okay. Now in 2008, when I was teaching AI for the second time, I taught the course, and towards the end I assigned a few topics to the students to present. So for example, one topic was, can AI write an essay? Can AI write some poetry? Can AI draw a painting? And so on and so forth. Can AI prove a mathematical theorem? And these things look like, oh wow. I mean, there is no harm in dreaming. It really looked like, ये एक दीवाने के ख्वाब जैसी चीज़ लगती थी कि AI कभी आपके लिए तहरीर लिख देगी, या AI कभी आपके लिए पोइट्री लिख देगी, या AI आपके लिए पेंटिंग्स या इमेजेस क्रिएट कर देगी. It really looked like a dream, and that dream too coming from and maybe a normal person. That's why I say that these large language models deployed at wide scale have really revolutionized the things. Because I can historically relate it. Maybe you cannot, because you have born with an era where things were really getting at fast pace. So, but I have gone through that time myself, where these things were not possible at all.
We could not even imagine that. And like we were talking about, oh, well, is it possible? Is it going to happen someday with symbolic AI? Maybe like if we continue with symbolic AI, maybe 100 साल बाद कुछ ऐसा हो सके. But like neural networks have like accelerated this thing to that extent where we are like not dreaming. मतलब मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देख सकता हूँ. So like, but I have. So I hope you understood what this graph is communicating to you, right? अब इसमें एक चीज और क्या हुई, दैट इज कि ना सिर्फ ये कि डेटा अवेलेबल हो गया, हमारे पास प्रोसेसिंग पावर भी आ गई. और इस प्रोसेसिंग पावर में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन जीपीयूज की है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की. जीपीयूज ओरिजिनली तो इन्वेंट किए गए थे ग्राफिक्स को बेहतर करने के लिए, गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे मिसाल के तौर पे. लेकिन ये एक हैरत अंगेज बात थी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स लाइक नाम तो उनका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ही था, वो ग्राफिक्स के लिए ही बनाए गए थे कि ग्राफिक्स को अच्छे तरीके से रेंडर किया जा सके. बट दे हैव प्रूवन टू बी अमेजिंगली सक्सेसफुल इन enabling large neural networks to train better and faster. So अब आपको पता है एक GPU के अंदर क्या होता है. लाइक आपके मशीन के अंदर CPUs हैं. So आपकी आमतौर पे अगर आप Core i7 मशीन लेते हैं तो उसमें कितने CPUs हैं, लाइक उसमें 4 या 8 कोर होंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप एक GPU लेते हैं, लाइक इस मशीन के अंदर भी एक हल्का सा GPU लगा हुआ है, उस GPU जो इसके अंदर लगा हुआ है गालिबन उसके अंदर 380 समथिंग प्रोसेसर है, 380 छोटे छोटे प्रोसेसर्स जिनकी स्पीड में भी 300-400 मेगाहर्ट्ज होगी, राइट. सो दे हैव लो स्पीड बट दे आर इन लार्ज नंबर्स. और अगर आप डेस्कटॉप मशीन्स के ऊपर या सर्वर मशीन्स के ऊपर GPUs देखेंगे तो उनमें एक GPU के ऊपर हजारों प्रोसेसर्स होते हैं. सो दैट मीन्स कि उनका जो पैरेललिज्म है वो बहुत हद तक आगे चला जाता है. सो दे हैव लाइक, और अगर आप अभी जैसे हम ओपन AI की बात करते हैं, सो लाइक हाउ हैज ओपन AI सक्सीडेड? दे डिडंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रेन दीज मेनी मॉडल्स. सो दे लाइक हैड शेकन हैंड्स विद माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के पास पूरा क्लाउड था. सो लाइक दे कुड अफोर्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो ये ओपन AI ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया. मिसाल के तौर पर कहते हैं हम 1 लाख GPUs पे फॉर एग्जांपल ट्रेन करते हैं इसको, राइट. फ्रॉम वेयर विल यू गेट दोस? लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड द मेन ट्रेनिंग पार्ट वाज डन बाय ओपन AI. दैट्स व्हाई इट हैज बिकम अ वेंचर of Microsoft and AI. So that's why you see that ChatGPT has incorporated with Bing to like make it available there so that Bing gets some highlight as well. So processing and data, both things have enabled this thing that we are witnessing today. So like this thing, and if you may have like, it's a bit of like story type thing that I'm telling you, but like it's good story to hear, good thing to be aware of. When we talk about like the mainstream people behind the success of like neural networks, two biggest names that we hear are Jeff Hinton and Joshua Bengio. Have you heard these names? Jeff Hinton and Joshua Bengio? No. So like maybe like if you use for example LinkedIn or Twitter, you can locate these people. Like they are not like very active on any kind of social media, but like still you will find an odd post from Jeff Hinton on LinkedIn, and also maybe sometimes he will tweet as well. Maybe महीने बाद, कभी कभी 2 महीने बाद, कभी कभी 4 महीने बाद एक tweet, something like that, right? Another person is like this Andrew Yang, जिसने ये specialization design की हुई है, is a very good educator on this domain. So like Jeff Hinton ने PhD गालिबन 80s में की थी, and उसका काम neural networks पे था. And he did his PhD from I guess Edinburgh. Undergrad शायद उसका Cambridge से था. UK, he was from UK. Edinburgh is a very good university. So like late 1980s से लेकर तकरीबन अगले 15 से 20 साल उसको किसी ने नहीं पूछा. गूगल स्कॉलर पे आप साइटेशंस देखते हैं मुख्तलिफ लोगों की,
सो हम एक आर्टिकल जब पब्लिश करते हैं तो अगर उस आर्टिकल को दूसरे लोग अपनी पब्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं या कहते हैं कि उसने ये काम किया और तो उसको साइट करना कहते हैं, तो लाइक जेफ हिंटन की एनुअल साइटेशंस 1000, 1500, 2000, 1500, 2000 हर साल उसके पेपर्स कितनी साइटेशंस लेते थे. Starting from 2008-9 onward, it just exponentially grew. So अगर आप कहें कि आपकी साल की साइटेशन 1000-1500 होती है तो 20 साल में कितनी हो जाएंगी? 20-30 हज़ार, right? And it continued like that, ऐसा ही था. Now he has more than 600,000 citations. Now he gets 100,000 citations in a year. 1 लाख citation उसे एक साल में मिल जाती है. Joshua Bengio is clocking even above that. The new entrants are like clocking like that. जो OpenAI के पीछे लोग हैं, मिसाल के तौर पे you find one of the people is like Elias Scriver. He's very young and he has like more than 300,000 citations. अमेरिका की अगर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा प्रोफेसर उठाएं अगर आप, तो अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 60-70 हज़ार citations अचीव करता है तो it is considered worth it. A very good university in US, a very good professor, and if he's achieving like 60-70,000 citations in the whole lifetime, that's like worth it. Now you're seeing people like Elias Scriver is still like under 40 maybe, and he has like more than 300,000 citations. So like all these people who have like blown the Google Scholar ranks are working in the domain of neural networks. This is the amazing part of it. Like nothing compares to it anymore. Okay. Jeff Hinton is now like 75, and he's a very like noble and sober man to hear. He gave a few interviews about the potential threats of like AI as well. He is worth hearing. Okay. Now let's dive into the neural networks somewhat now. So suppose we have a problem that there is a shirt that is being like put in the market, and we want to predict its demand in the market. कि क्या ये shirt market में इसकी demand होगी या नहीं होगी तो कितनी होगी और so on so forth. और हम demand prediction क्यों करना चाहते हैं? Because we want to prepare our production line accordingly. हम उसी तरीके से अपनी production को tailor करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पे हम एक चीज़ मार्केट में थ्रो करते हैं, मार्केट में वो एकदम हाथों हाथ बिक जाती है एंड वी आर शॉर्ट ऑन द सप्लाई. हमारे पास प्रोडक्शन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतनी डिमांड को मीट कर सकें जितनी डिमांड है उसकी. ठीक है? या अगर हम एक चीज़ को एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं और उसकी डिमांड ही मार्केट में नज़र नहीं आती, राइट? सो वी वांट टू प्रेडिक्ट इट टाइम अहेड दैट व्हाट विल बी द डिमांड सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, एंड डिमांड प्रेडिक्शन हैज़ a big role to play in the production industry now. So say we have a shirt and we want to tell that whether this shirt will be a hot seller or not, right? So obviously if it is a like simple yes no answer, that yes it will be a hot seller, no it will not be a hot seller, तो ये classification problem हुआ. और अगर ये classification problem है तो आप इसको logistic regression से solve करेंगे, यानी sigmoid function से solve करेंगे. So you will say that okay, these are the shirts that are top sellers, these are the shirts that are not top sellers, and like this is a sigmoid function maybe that is going to work with it, right? Hypothetically. So we have already talked about classification problems and we have already talked about logistic regression and sigmoid functions. That's why it will work, right? कुछ पढ़ा भी हुआ है कि खाली खुली है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है?
मुझे ये ना बताएं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि आपको पता है कि नहीं पता। हो सकता है अच्छे अल्फाज में ना ढाल सकें, दैट्स ओके। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ा है? ओके, so let's say we have price of the shirt as our input and we want to like give us a result in the form of classification that whether it will be in demand or not in demand. So we can simply fit a logistic regression model over it that is known as like f of x, where x is just one variable, that is the price. Let's say instead of calling it f of x, we now call it a. We call it activation. अब हम a इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो न्यूरॉन होता है वो जब एक सिग्नल अगले न्यूरॉन को पास ऑन करता है तो उसको आमतौर पे एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरॉन कहा जाता है, और वो एक्टिवेशन रिप्रेजेंट करती है उस इंटेंसिटी लेवल को जिस इंटेंसिटी से वो सिग्नल आगे भेज रहा होता है। तो कभी कभी वो इंटेंसिटी हाई होती है, कभी कभी वो इंटेंसिटी लो होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन के व्हाट इज द इनपुट, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट वेरी करती है। So since we are talking about neural networks, so just for the sake of terminology similarity, instead of calling it like f of x, we say it is activation and we name it variable a. हम इसको a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक हो गया। So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको एक न्यूरॉन के तौर पे ले लें, इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को एक न्यूरॉन के तौर पे ले लें and we represent it as this circle, then we will be giving it an input x, which is the price of the shirt, and it will be returning us a value a, which will be the probability of being the top seller. So like आपको पता है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है वो आपको 0 से 1 के दरमियान probability रिटर्न करेगा, right? So like we get the output in the form of a, right? So this is the thing which is like doing this computation is now being called a neuron. Now so far there is nothing different to what we have already studied. हम पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कंप्यूट कर रहे थे, लेकिन ये जो कंप्यूटेशन थी उसको हम न्यूरॉन नहीं कह रहे थे, अब हम इसको एक न्यूरॉन कह रहे हैं। सो आप इसको एक प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे ले लें, न्यूरॉन के तौर पे ले लें, इसको कंप्यूटर कह लें, कुछ भी कह लें, राइट? सो वी आर नाउ गोइंग टू कॉल इट अप, फ्रॉम नाउ ऑन वी आर नाउ गोइंग टू कॉल दिस कंप्यूटेशन यूनिट अ न्यूरॉन। अब से हम इसे एक न्यूरॉन कहेंगे, राइट? सो ये न्यूरॉन इनपुट लेगा, कोई प्रोसेसिंग उसके ऊपर करेगा। इस केस में हमें पता है कि क्या प्रोसेसिंग करेगा, क्या करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट दे देगा। उस आउटपुट का नाम अब हम ए रख रहे हैं, राइट? ए इज शॉर्ट फॉर एक्टिवेशन, राइट? सो लाइक ये न्यूरॉन हमें ये सिग्नल्स आउटपुट के तौर पे दे रहा है, ओके। नाउ व्हाट वी डू इज, say we have like multiple variables. हमारे पास फर्ज करें प्राइस ऑफ द शर्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग के बारे में कुछ डेटा है, और फर्ज करें हमारे पास शर्ट के मटेरियल की कोई इन्फॉर्मेशन है, राइट? हमारे पास एक नहीं बल्कि 4 वेरिएबल्स हैं, और हम इन 4 वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि हमारी शर्ट की मार्केट डिमांड क्या हो, राइट? ओके। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ एक मॉडल नहीं बल्कि आपको 3 न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, राइट? एक नहीं बल्कि हम सादा लफ्जों में यूं कहते हैं, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, राइट? अब एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आप बहुत सारी रिडंडेंट कंप्यूटेशन से एक वक्त में कर रहे हैं, यानी आप एक वक्त में एक मॉडल नहीं बना रहे बल्कि एक से ज्यादा मॉडल बना रहे हैं। यानी आपने वही जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रोसेस था उसको मैनी टाइम्स रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब ये सवाल कि यहाँ पे हम एक तो कह रहे हैं चले नहीं, हमें एक बार नहीं, हम इसको रेप्लिकेट करते हैं और इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा, वी विल सी कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। तो अब सवाल ये भी है कि अच्छा कितनी बार रेप्लिकेट करें, ये सवाल भी एम्पिरिकल है या तजुर्बाती है। इस केस में हमें यहाँ 3-4 नज़र आ रहे थे, हमने यहाँ पे 3 रख लिए हैं। आप 6, 8, 10, 15 कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते थे यहाँ, राइट?
ओवर टाइम ये बात आपको कैसे समझ आएगी कि क्या एक सूटेबल वैल्यू होगी, कि आपको कितनी रिडंडेंसी क्रिएट करनी चाहिए या कितने न्यूरॉन्स बनाने चाहिए, ये आप ओवर टाइम तजर्बात से बेहतर सीख लेते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एक की बजाय मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स क्रिएट करते हैं और हम क्या करते हैं कि ये सारी इनपुट्स सब यूनिट्स को दे देते हैं, यानी ये चारों वेरिएबल इसके पास नहीं आएंगे, ये चारों वेरिएबल दूसरे यूनिट के पास नहीं आएंगे और ये चारों वेरिएबल तीसरे यूनिट के पास नहीं आएंगे, राइट। सादा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता, एक ही यूनिट होता, यहां क्या है, एक से ज्यादा है। इस केस में 3 है, लेकिन ये 3 से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, राइट। द ओनली थिंग इज you will be saying it is more than one now, you have redundancy here now, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये 4 इनपुट्स दे रहे हैं और आप आगे 3 न्यूरॉन्स को ये इनपुट्स दे रहे हैं और तीनों न्यूरॉन्स को ये सारी इनपुट्स जा रही हैं, तो ये 3 न्यूरॉन्स अपनी इनपुट्स में आउटपुट्स में क्या निकालेंगे, ठीक है। अब मैं एक बिल्कुल फर्जी बात कर रहा हूं, मैं एक बिल्कुल फर्जी बात कर रहा हूं, ये हकीकत में दुरुस्त है या नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें इसके बैकएंड से इस फर्जी बात से समझ आ जाएगा। फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि ये 4 जो मेरे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और मटेरियल, ठीक है, इनको एक मोमेंट के लिए मैं जरा साइड पे रख देता हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरी शर्ट की पॉपुलैरिटी डिपेंड करेगी अफोर्डेबिलिटी पे, कि शर्ट मेरी कितनी अफोर्डेबल है, क्योंकि प्राइस मैटर करती है, अफोर्डेबिलिटी पे, अवेयरनेस पे, कि मैं जिस मार्केट में इसको बेच रहा हूं वहां की ऑडियंस, वहां का बायर, वहां का कस्टमर कितना अवेयर है, ठीक है। और तीसरी चीज परसीव्ड क्वालिटी पे, कि जब मैं एक चीज बेचता हूं तो उसकी क्वालिटी को लोग कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 चीजें मैंने यहां पे कही हैं, ये कहानी को किसी और तरीके से ट्विस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जो एक्चुअल इनपुट है वो क्या है, प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग और मटेरियल, ठीक है। मेरे पास ये 4 वेरिएबल्स थे, ठीक है। इन 4 वेरिएबल से आगे मैं कितनी आउटपुट्स जनरेट कर रहा हूं, 3, ठीक है। ये तीनों आउटपुट्स अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होंगी, क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी ये हमें नहीं मालूम। फर्जी तौर पे मैं ये कह देता हूं कि फर्ज करें कि पहला न्यूरॉन अफोर्डेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा न्यूरॉन अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा न्यूरॉन परसीव्ड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अफोर्डेबिलिटी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेगी। मिसाल के तौर पे अफोर्डेबिलिटी हमें बज़ाहिर यूँ लगता है कि प्राइस पे डिपेंड करेगी और शिपिंग कॉस्ट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इससे पता चलेगा कि शर्ट अफोर्डेबल है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूरॉन ने इन 2 फीचर्स को ज़्यादा अहमियत दी और इन 2 फीचर्स को तकरीबन निगलेक्ट कर दिया। ये मैंने कहा, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये बिल्कुल एक फर्जी कहानी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, अगर मैं अवेयरनेस की बात करूँ, ठीक है, तो अवेयरनेस के अंदर लाइक डिपेंड्स कि मैं अवेयरनेस को कैसे डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट करें कि मैं इसके अंदर मार्केटिंग को इंक्लूड कर देता हूँ कि जितनी किसी चीज़ की मार्केटिंग की जाएगी उतनी उसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी, वो मुस्बत होगी या मनफी होगी या जो भी होगी, लेकिन उसकी अवेयरनेस के अंदर एक चीज़ जो कंट्रीब्यूट करती है वो मार्केटिंग है, ठीक है। और मे बी एक और चीज़ जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है वो मटेरियल भी है, कि लोग कितना अवेयर है किसी मटेरियल के बारे में। मिसाल के तौर पे आप जाके देखते हैं कपड़ा, ठीक है, तो आप कपड़े की क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। सो लाइक इफ़ यू गो टू मार्केट, तो जैसे मतलब अक्सर ख़वातीन अगर बाज़ार जाती हैं तो आप लाइक तो कपड़ा लेते हैं तो यू विल सी के आपके अंदर, या शायद आप ये चीज़ अभी ना जज कर पा रहे हो, लेकिन ये मदर विल बी लाइक गुड एट सी। तो आपकी वालदा देख के कहेंगी नहीं ये कपड़ा हल्का है, ये कपड़ा अच्छा है, फलां ब्रांड का कपड़ा बेहतर होता है नहीं होता। तो लाइक दैट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लाइक आपकी अवेयरनेस कैसी है। अच्छा, तीसरी चीज़, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप मार्केटिंग और मटेरियल को
कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला न्यूरॉन, और उसने इन दोनों वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, फर्स्ट करें तीसरी चीज़ है परसीव्ड क्वालिटी। फर्स्ट करें परसीव्ड क्वालिटी में मटेरियल। अगेन अब ये बातें वो हैं जो हम जिसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि नहीं इसमें ये नहीं होता वो होता है, राइट, बट जस्ट सिंपली सही कि परसीव्ड क्वालिटी में हम एक तो मटेरियल को कंसिडर करते हैं क्योंकि मटेरियल क्वालिटी को तय करेगा, ठीक है। और फर्स्ट करें हम दूसरी चीज़ इसके अंदर प्राइस भी डाल देते हैं, क्योंकि बहरहाल इसको दुरुस्त समझें या गलत समझें, हम प्राइस को क्वालिटी का इंडिकेटर समझते हैं। अगर एक चीज़ महंगी है तो हम आम तौर पे ये परसीव करते हैं कि ये अच्छी होगी, और अगर एक चीज़ सस्ती है तो हम आम तौर पे ये परसीव करते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला न्यूरॉन जो है वो मटेरियल को और प्राइस को कंसिडर कर रहा है और दरमियान वाले दोनों वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं कर रहा है, या यूं कह लें कि शिपिंग कॉस्ट को हल्का फुल्का कंसिडर करता है, ज़्यादा नहीं करता, समथिंग लाइक दैट, राइट। अब मैंने ये कहा कि ये जो तीन मैंने वेरिएबल यहाँ लिखे हैं ये बिल्कुल फर्जी वेरिएबल है, लेकिन असल में जो आपका न्यूरल नेटवर्क कर रहा होता है वो कुछ इसी किस्म का काम कर रहा होता है कि उसको आपने 4 फीचर्स दिए, आगे आपने 3 न्यूरॉन्स रखे हुए थे। अगर आपने 3 न्यूरॉन्स रखे हुए थे तो वो तीनों न्यूरॉन्स अपनी अपनी जगह कोई अलग अलग चीज लर्न कर लेंगे, पैरामीटर्स की वैल्यूज को एडजस्ट करके अपनी जगह अलग अलग कोई चीज लर्न कर लेंगे, उनका कोई नाम नहीं होगा। यहां मैंने ये नाम रखे ये बिल्कुल फर्जी नाम है, वो ये लर्न करेंगे या क्या लर्न करेंगे ये हमें मालूम नहीं होता। हम सिर्फ उसको इनपुट दे देते हैं और रिडंडेंट कंप्यूटेशनल न्यूरॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसे कहते हैं यार खेलो जरा इनके साथ और जरा अलग अलग सी चीज़ें करके देखो और इनमें से कोई अच्छी सी चीज़ निकाल कर दिखा दो, ठीक है। अब इसके अंदर हम ह्यूमन लेवल पे जैसे ये कहते हैं कि हम कुछ एट्रीब्यूट से नए एट्रीब्यूट लर्न करते हैं और सो ऑन सो ऑन सो ऑन, तो हम अपने न्यूरल नेटवर्क से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, और प्रैक्टिकली न्यूरल नेटवर्क्स ये काम करने में बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुए ओवर टाइम। सो वो इन 4 फीचर्स में से कौन से फीचर्स बेहतर हैं, कौन से फीचर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे ये लर्न कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 फीचर्स थे इनको हमने ग्रुप करके कह दिया कि ये एक लेयर है, दिस इज अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स, दिस इज अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स दैट हैज 3 न्यूरॉन्स इन इट। यहां से जो 3, यहां देखिए इसको इनपुट्स कितनी मिली थी, 4, हर न्यूरॉन को 4 इनपुट्स मिल रही थी, हर न्यूरॉन एक एक आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। उस आउटपुट का कोई नाम नहीं होगा, हमने यहाँ फर्जी नाम दिए हैं कि ये अफोर्डेबिलिटी है या अवेयरनेस है या, ठीक है, उसने डिफरेंट फीचर कॉम्बिनेशन से डिफरेंट फीचर लर्न करनी है। अब ये जो 3 चीज़ें फर्स्ट करें फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम कहते थे कि जी इसने अफोर्डेबिलिटी बताई, इसने अवेयरनेस बताई और इसने परसीव्ड क्वालिटी बताई। अब ये तीनों आउटपुट्स एक और न्यूरॉन को बतौर इनपुट दे दी जाएंगी, राइट, और ये न्यूरॉन इन 3 इनपुट्स की बेसिस पे आपको एक फाइनल जवाब देगा व्हिच विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द शर्ट बीइंग अ टॉप सेलर, राइट। अब यहां जो वेग चीज है वो ये एक लेयर है, ये एक और लेयर है, ये 2 लेयर्स हो गई ना, इस लेयर में 3 न्यूरॉन है और इस लेयर में 1 न्यूरॉन है। अब 2 सवाल हमारे सामने ऐसे हैं जिनका हमें अभी जवाब नहीं मालूम, वो ये कि कितनी लेयर्स होंगी ये कैसे पता चलेगा, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इस सवाल का जवाब अभी हमें मालूम नहीं है, राइट। ये बात हम कैसे तय करेंगे कि कितनी लेयर्स होंगी, ये बात भी तजर्बाती तौर पे हम ओवर टाइम सीखते हैं, राइट। तो इस चीज़ को लेके अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितनी लेयर्स रखनी है, राइट। दूसरी बात, हर लेयर के अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे इसका जवाब भी अभी हमारे पास नहीं है। हमें ये बात कैसे समझ आएगी कि हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, ओवर टाइम विद सम एक्सपीरियंस विद इट, राइट। सो इफ यू आर नॉट श्योर हाउ मेनी लेयर्स, इफ यू आर नॉट श्योर हाउ मेनी न्यूरॉन्स पर लेयर, it's not a problem at all for now। सिर्फ एक चीज जो आपको अभी समझ आ जानी चाहिए वो ये है कि मल्टीपल न्यूरॉन्स क्रिएट करके
हम रिडंडेंट कंप्यूटेशंस इंजन्स क्रिएट करते हैं